Okay, I'm waiting for the other panelist ताकि सारे आ जाए तो शुरू करिए. नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀ ਜਾਓ. ਹਾਂਜੀ 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 ਚਲਿए start. So now we have with us Dr. Baltev Singh Maan, member National Commission for Minorities, and also we have Dr. Michael Williams, principal Mount Carmel Tuaca School, and Mr. Soni, a Buddhist, but he has got its body. Could you please elaborate, Soni sir? Wow. Could you elaborate your body now? Yeah. Thank you, sir. Yeah. I am Virender Kumar Soni. Yeah. I belongs to Champaran, Bihar, and I run two NGOs, one in USA called Non-Violence Peace Foundation, and in Very India, good. Non-Violence Foundation. And Very I good. just started a company called Non-Violence Planet Future Private Limited. Very good. Basically, working on environment and promoting organic, vegan, vegetarian food, which is like starting rooftop farming, urban farming in Delhi. Beside this, all social work. So I mix That's my good. company and foundations together with same mission and vision, but different way to work with society. Lovely. That's good. That's good. So Mount Carmel School is at Delhi or it is in Dehradun? In Delhi, sir. In Delhi. There is Mount Carmel in Dehradun also, right? I'm not Mussoorie or Dehradun. I'm not, please mute your TV. So I'm not familiar, Baltejji. Yeah. Not, sir. So welcome. We can say you Mike. Right. Thank you, Ji. हरमन जी ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ. ਹਾਂ. ਕਰ ਲੱਗੇ sir. We are waiting for right person to join. Then we start. No problem because since there was a technical hitch, so we can wait for others. It takes time to reach the message, no? I know. Right. Minhas Sahab, I noticed that one of my juniors from school also is on the panel with you, a Parsi friend of mine, Adil Nagarwala. Yeah, he's there. Yeah. Let's hope he joins. Yeah. Okay. We welcome Adil Nagarwala, and also we welcome Dr. Nilofer Shroff to this occasion. Wow. Right. Wow. We also welcome Dr. Najvi. Mrs. Najvi, she is a director to Natural Museum, and plus so many environmental bodies, this and that. She will be able to express herself when we ask her to. Then we are also joined by Principal Ashwani Bakshi, former principal from Cambridge School, Noida also, and we are expecting people to join. Thank you. Thanks. Thank you. Dr. Fahim. Yeah. Shortly, Sada Harmanjeet Singh will be joining. We are expecting to join within a minute or two. And Dr. Nilofer Shroff, she's already there. Welcome, madam. Thank you very much. Welcome. There was some technical problem. Yeah, madam. I'm not very sure whether Mr. Adil Nargolwala be able to join us. He's not been too well. Okay. We'll wait if he can. Never mind. In case he joins in between, we'll welcome.
Yeah. Mr. Virendra Kumar to unmute, sorry. Mr. Virendra Kumar हरमनजीत to सिंह जी। unmute, please. सत श्री अकाल हरमनजीत सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। He is Sardar Harmanjeet Singh Ji, Senior Vice President, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, President to Rajori Garden Singh Sabha Management Committee, and also a very leading leader of Delhi, long time associated with Punjab Akali Dal body and also Delhi bodies. हाँ 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 ठीक है। So हरमनजीत जी पट्टी उतार लो सारी। उतार लेते जी। हाँ लो जी। बस 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 इत्थे पट्टी भी नहीं बननी ते सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई नहीं करनी, आप बहुत नेड़े रहना है। क्या बात है जी। I think we'll start for people to come हाँ and हाँ join later, बिल्कुल। right? First of all, I extend a very cordial welcome to every panelist who has joined today with me. First of all, I would like to congratulate you. Today is one of the important historical day. Number one, it is International Yoga Day. It is International Musical Day. It is International Father's Day. It is Sonia Day. And above all, it is Sardar Harmanjeet Singh's birthday also. Wish you a good birthday, sir. Have a nice and wonderful time. And we will be talking, although we've been doing a lot of work collectively in our own sphere, and because we are in the minorities, we like to connect with each other. We like to see what you've been doing and what more collectively we can do. And before I say anything further, I would ask Dr. Baltej Singh Ji Maan, Member National Minority Commission, to start with the President's address. Sardar Maan Sahab. सत श्री अकाल। आज का जो ये वेबिनार हमारे हरमनजीत जी और मनहास जी ने प्लान किया है, तो सबसे पहले तो आप मेरा जो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, एम आई ऑडिबल सर? यस ओके। ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये परिवार है, जैसे सारा के सारा, मैं माफी चाहता हूं कि ये थोड़ा सा हमें ये शुरुआत हमारी थोड़ी सी जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड का ये जो आयाम एक ऐसा आया है जिसका ना कोई रिलायबल टेस्ट है, ना कोई रिलायबल दवाई है इसकी। तो इसमें मेरे को कोई महीना पहले हरमनजीत सिंह जी का फोन आया कि जी आप चीफ मिनिस्टर साहब को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को आप उनको फोन करें कि जितने भी लोग माइग्रेंट्स लोग, जितने भी 5,000 10,000 लोग जितने भी हैं, उनके लिए मैं अपने गुरुद्वारा की तरफ से लंगर भेज दूंगा उतने में। और मैंने बात भी की केजरीवाल साहब से, और इनका आपस में एक जुड़ाव भी हो गया। फिर दूसरी बात जो हमारे कम्युनिटी सेंस की बात है कि इसी स्कूल जो माइनॉरिटी एजुकेशन स्कूल जो मनहास जी का है, हरमनजीत जी इसके चेयरमैन हैं, इनके जो गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारे के साथ लिंक्ड है। उस गुरुद्वारा में मेडिकल फैसिलिटीज जो इन्होंने की, क्वारंटाइन इन्होंने किया, तो देखिए मेरे परिवार में 15,000 के करीब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। कितने वहां से फोन आए कि हम कम्युनिटी की तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा मनहास जी ने बताया कि हमारा फोकस जो आज का विषय है वो रोल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन ड्यूरिंग कोविड-19। अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, आपको भी पता है, अभी 1 साल
अगले साल तक भी चलने का ये है, तो ये बहुत अच्छा है। तो हमने ये चाहा कि एक्सपीरियंस शेयर किए जाएं कि एज एन इंडिविजुअल सर एक मिनट मैं अगर आपके सवाल को मैं हम्म। पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सदा हरमन जी से ये सवाल पूछना है, कनेक्टेड टू हिम ओनली। हाँ हरमन हाँ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, वैसे तो जैसे मान साहब ने आप सबको बताया ही है कि भाई इनकी मेरी बातचीत हुई, और पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जैसे ये स्टार्ट हुआ तो लोग अपने अपने घरों में जाने लगे बाहर, और कई लोग जिनको काम नहीं था वो हमारे इधर पुलिस स्टेशन में जो अनिल अनिल शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना कुछ स्कूल, गवर्नमेंट के जो स्कूल थे केजरीवाल जी के अंडर आते थे या कॉर्पोरेशन के अंडर आते थे, वहां पर लेबर भिजवाई। किसी कई जगह 100 थे, किसी जगह 300 थे, किसी जगह 200 थे। तो ऐसे करके ना करीब 10-11 स्कूल और 2-3 कॉलोनियां ना हमें इन्होंने ना अडॉप्ट के लिए बोला। जैसे पंजाबी बाग में है, और एक रेलवे कॉलोनी है यहाँ नरैना से लेके कीर्ति नगर तक, रेलवे लाइन के साथ साथ एक बसी हुई कॉलोनी है। तो अडॉप्ट करने के लिए बोला कि ये आप 2 कॉलोनी अडॉप्ट कर लो, यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ लेबर थी, आज इनके पास काम नहीं है, और आप इनको ना अच्छी तरीके से जो भी है ना, ऐसी कोई गुरु महाराज की मेहर हुई, और हमने ना पूरी तरीके से ना उनको उनके लिए अपना जहाँ मनासब हमारे प्रिंसिपल हैं वहाँ पर हमने किचन, बहुत बड़ा किचन बना लिया। वहाँ पर 10 से 13,000 14,000 लोगों का रोज लंगर बनना था। और ऐसे ही हमारे गुरुद्वारे में राउंड अबाउट 2500 से 3,000 लोगों का लंगर बनता था। और वो परमात्मा की कृपा से ये जो हमने अडॉप्ट किए थे स्कूल, और वो हम कुछ भिजवाते थे, और मनासब के जो स्कूल में लंगर बनता था, यहाँ पर वो लोग जैसे जो गरीब कॉलोनियाँ या जो जो भी ऐसे लेबर कॉलोनियाँ थी, वहां से वो लंगर लेके जाया करते थे। अबाउट हमारा 15,000 16,000 बच्चों बंदों का ना लंगर तैयार होता था। सदा और हरमन परमात्मा जी, की कृपा से ये बड़ा ही अच्छा हुआ, हमारे को एक्सपीरियंस भी हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। ये देखते देखते फिर हमारा ये दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ने भी 1,00,000-1,50,000 लोगों का रोज का लंगर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे देखते देखते RSS वालों ने दूसरे भी किया। बट मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो क्वालिटी, जो बातचीत जो हमारे गुरुद्वारों में जो आई है, हुई है, इसमें ना सारा नहीं ना हमारे कुछ लोग जैसे स्कूल में थे, जो अपना बिल्कुल वहां पर लेबर जो रुकी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा ही अप्रिशिएट करते थे कि भाई हमारे पास ना कैसे भी करके ना, ये जब हमारा लंगर आता तो ऐसे टूट के पड़ जाते थे कि किस हिसाब से वो चल रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी या क्या किस हिसाब से था। और दूसरा हमारे जो ऊपर वाले की कृपा से हमने इन दिनों में मान साहब हमने 8 मशीनें तो लगा दी हैं डायलिसिस की। और हमारा जो मशीन है डायलिसिस की अपना गुरुद्वारे में जो लगी हुई है, ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मशीन जो है ना, जापान की मशीन है, वो लगाई हुई है। और साथ ही इसका रेट जो है ना, इंडिया में सबसे कम रेट है। हम 750 रुपए में ये कर देते हैं, डायलिसिस कर देते हैं, जो कि बाजार में 3500 से लेके 7-7,500 में होता है। हाँ और जी, ये भी जो हरमन जी 750 सुनिए, गरीब आदमी नहीं दे पाता तो उसको हम 30%, 40%, 50% डिस्काउंट दे देते हैं। वो भी नहीं कर पाता, हमारी एक टीम है 3 आदमियों की बनी हुई है, वो जाते हैं और चेक करते हैं वाकई ये अफोर्डेबल नहीं है, तो उसको हम फ्री भी कर देते हैं। हाँ जी ऐसा सर, ही ना जो डिस्पेंसरी है, ये भी हमने अभी फरवरी से जैसे ये सारा चीज हुई है, तो जो जितनी जो दवाई है जो हमारा डॉक्टर रिकमेंड कर देता है, दवाई हमने फ्री कर दी है। मतलब जो भले 1 रुपए की दवाई हो, भले 10,000 की दवाई हो, भले 2,000 की दवाई हो, 3,000 की हो, वो दवाई ना हमने ना हाँ जी, हाँ ये जी, जो हम कर दैट्स पाए हैं, वंडरफुल। ये चीज कर रहे हैं। और मनासक के स्कूल में जो एक आधे मिनट की हो रहा है जी, हाँ मनासब के स्कूल में जो हमारे जो 300 350 मिनॉरिटी का ऐसा बच्चा है जिसके नंबर 60 से ऊपर आते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना पढ़ाई के लिए,
तो वो हम उनको ना एजुकेशन में 50% डिस्काउंट देते हैं, कुछ फ्री भी कर देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्री भी करते हैं। ये तो हमने अपना किया है बिल्कुल, और आगे करा भी रहा है, परमात्मा कराता रहे, जिससे कमाएगा करेगा। चलो ये तो बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो जी, ये कौम की सेवा है, इस कौम की सेवा में आप लगे हुए हो। लेकिन मैं ऐसे मिलता जुलता एक सवाल और आपसे पूछूंगा, क्या हम कौम की सेवा कर रहे हैं, अपने आदमियों की कर रहे हैं, या समूह सारे सोसाइटी की कर रहे हैं? कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है। कुछ आपके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने इलाके में ही काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वहां से वोटें लेनी है, वो आम जनता इलाके में पहुंच नहीं पाती। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट तो लेनी है। ऐसा है जी, जो हमारे मेंबर, कोई हमारा ये नहीं है कि हाँ भी रजौरी गार्डन का ही होना चाहिए या टेगोर गार्डन का होना चाहिए। जहाँ जिसका पेट खाली है, जैसे हम तो बॉर्डर तक गए हैं, यूपी बॉर्डर तक गए हैं, पंजाब बॉर्डर तक गए हैं, हरियाणा बॉर्डर तक गए हैं, लोगों को लंगर पहुंचवाया है। इवन यहाँ तक है कि वो जो जा रहे थे ना, पैदल लोग जा रहे थे, 50-50 के गुट में जा रहे थे ना, हमने उनको पैक करके भी दे दिया कि भाई रात को आपको नहीं मिलेगा, या रात को रास्ते में आपको नहीं मिलेगा, तो ये ले जाइए। एक एक दो दिन का जितना पैक कर सकते थे वो करके भी दिया है। और एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास बाबा जी बैठे हुए हैं, मसाले सारे फ्री ये भेज देते हैं हमारे को, जितने बाबा मसाले के आ जाते हैं वो नहीं, आगे से राशन भी ले लेंगे इनसे। राशन के लिए ये ना थोड़ा सा ना जरा मामलों में कंजूस तो मैं मनहाज साहब, हाँ जी, अच्छा हरमनजीत जी, क्योंकि मैं 5:30 वजे दूजी मीटिंग च जुड़ना है 6:30 वजे, ਤਾਂ मैं अपने शुरुआत ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर हम लें तो रब दी याद सबसे पहले जो लोग भूल गए थे, वो सब जो है वो वाहिगुरु रब के करीब, अल्लाह के करीब, गॉड के करीब आए। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे टेलीफोन ये आए कि जी बात ये है, इधर से महामारी है, उधर से गुरुद्वारे और चर्च आपकी सरकार ने बंद कर दिए हैं, हम कहां जाएं। ऐसी बातें जो हमारे सामने आई, तो उसमें परमात्मा के साथ मेल, दूसरा शांतमय सहहोंद, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और तीसरा परिवार में वापस लाना। जो हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जिनके साथ मेरे जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन अमेरिका में हैं, मैंने कभी वीडियो पे इतना समय नहीं लगाया था उनके साथ, लेकिन अब उनके साथ समय लगाया, उनको पंजाबी भी पढ़ाया। टेक्नोलॉजी भी सर, ये भी है। एक रिक्वेस्ट है, तो क्योंकि आपने चले जाना है, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा, हाँ बोलिए, जितने माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आज हैं या जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पाए, उन सब के लिए कोई आप ऐसा कोई अम्ब्रेला तैयार करें, यहाँ हम इकट्ठे होकर अपनी समस्याएं आपसे दे, फिर आप हमारी समस्याएं आप गवर्नमेंट के पास लेके जाएं। हम चाहते हैं एक दूसरे से मिलना बढ़ता। अभी आपने कहा कोएग्जिस्टेंस, वी आर देयर टू कोऑपरेट, कोएग्जिस्ट एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन आल्सो एवरी नाउ एंड देन। हम चाहते हैं हमारा भाईचारा माइनॉरिटी कम्युनिटीज आपस में और बढ़े। नहीं मनहाज जी, ਤੁਹਾਡੀ सोच बड़ी अच्छी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हमें तो एज इंडिविजुअल, एज कम्युनिटी, जितना भी हम अपनी कंट्रीब्यूशन, देखिए आज का सेमिनार हेल्थ केयर पे मैं फोकस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की है मैंने मनोज जी से। नेक्स्ट एक हमारे खालसा कॉलेज जमुनानगर में है, उन्होंने एजुकेशन का विषय लिया है कि हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का एजुकेशन के प्रति क्या योगदान हो सकता है। हमें जैसे कोविड ने हमें आज पंक्चुअलिटी सिखा दी,
अगर हम ऑनलाइन आ गए हैं, पंक्चुअलिटी सिखा दी। अगर ये सेमिनार रजौरी गार्डन स्कूल में होता तो पता नहीं कितने बजे शुरू होता, ये 1 नहीं, हमें घंटा ये 1.5 सिखा दिया घंटा। है, कोरोना ने ये सिखा दिया, कुछ करो ना, फाइंड अ सब्स्टिट्यूट वे आउट। ये बात है। या तो यहाँ पे मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के नाते नहीं हूं। आप यहाँ बुद्धिस्ट समाज के लोग भी हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, मुस्लिम बहनें हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूं। तो हमें तो ये चाहिए कि हम ये एक हरमनजीत जी से और मनहास साहब से ये भी बात की थी कि आप देखिए, अगर ये वेबिनार कर रहे हैं तो इसके बाद ये भी बीड़ा उठाइए कि एक इंटरफेथ सेमिनार, एक इंटरफेथ सेंटर भी हमारे इसमें रजौरी गार्डन स्कूल में खुल जाए, और यहाँ पे हम लगातार चाहे वेबिनार करें, चाहे सेमिनार करें, और जो कंटेम्प्रेरी हमारी समाज की समस्याएं हैं। देखिए, हमारे धर्म में दान जो है, किसी भी धर्म में दान को पुण्य कहा जाता है, और वो दान हम इसमें कर रहे हैं। एक ह्यूमैनिटी, मनुष्यता का जो सवाल है, इस पे हमारा कोई विरोध नहीं है किसी धर्म के साथ, और जैसे हमारी गुरु नानक देव की फिलॉसफी थी। तो ये सारी बातें कहते कहते मैं जितनी देर भी मेरे पास समय हुआ, मैं आपको सुनना चाहता हूं ज्यादा, और इसके साथ ही मैं बधाई देता हूं हरमनजीत जी को, बाबा जी को और मनहास साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैं डॉक्टर निजविक से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम, हम मिलजुल कर अपने अपने दायरे में सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटी के लेवल पे भी करते आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया सिटिंग अदर साइड ऑफ द टेबल, वी आर नॉट अवेयर। हम जानना चाहेंगे तो मुस्लिम समाज में क्या क्या किया जब ये कोविड का पीरियड चल रहा, भी खत्म नहीं हुआ, आगे जैसे बताया गया, मान साहब ने बताया, भी आगे डिले है, चलता रहेगा, पता नहीं कितनी देर चलेगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप कृपया ये बताइए कि आपकी कम्युनिटी ने इंडिविजुअली और मिलकर कलेक्टिवली ये सोसाइटी के लिए, कौम के लिए, इलाकों के लिए क्या किया। मेरा नमस्कार आप सबको, और मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर मनहास का कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वेबिनार रखा है। मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ सर, और ना ही मेरा कोई इस तरीके का किसी एक इदारे से जो है वो ताल्लुक है, लेकिन फिर भी बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बीइंग अ मुस्लिम वुमन, ऑल आई कैन से इज दैट कि जब ये इस तरीके के हार्ड टाइम्स होते हैं, ड्यूरिंग दिस एनी पैंडेमिक और फॉर दैट मैटर एनी डिजास्टर इन द कंट्री, any community, whether it is a minority community or a majority community, has a very important role to play. And आपके इस वक्त जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, उसमें हर आदमी हताश है, आइदर डायरेक्टली इफेक्टेड है और इनडायरेक्टली इफेक्टेड है। कम्युनिटीज का सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पीपल विद इमोशंस, विद देयर वर्किंग, विद देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, विद देयर सोशल सेंटिमेंट्स। और इस मामले में इन सारी चीजों को देखते हुए जब कोई भी डिजास्टर होता है, मैं इसको डिजास्टर ही का पार्ट मानती हूँ क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। यस, एंड इस वक्त जो मैं बात कहना चाहूंगी वो बीइंग अ मुस्लिम, belonging to a Muslim community से कम, और as a student I have done my management course in disaster management also। उस point of view से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक community किस तरीके से help कर सकती है एक वापस resilient community बनाने में, और एक आप जो एक survival होता है और fight back करने के लिए। because हम जब हम कहीं भी रह रहे होते हैं, actually communities have got different meanings। हम जब उसको minority और majority के हिसाब से देखते हैं तो at that time हम उसको religious aspect से देख रहे होते हैं, लेकिन actually it is a group of people living in a particular area where they share common, culture, identity, all these things, and that is true with religion also। क्योंकि community जो है वो religion एक बहुत important binding factor जो है वो होता है, it is one of the factors। इस पीरियड में जब कोई
कोई भी इमरजेंसी होती है और इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है, तो एक कम्युनिटी जो होती है वो हेल्प कर सकती है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन इमोशनल सपोर्ट। एक आपको कल्चरल सपोर्ट चाहिए होता है, एक आपको सोशल सपोर्ट चाहिए होता है, और इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए कि टू बिल्ड बैक, टू कम फॉर आई मीन टू कम बैक ऑन ट्रैक। और इस वक्त ये देखा गया है, सबसे अच्छी बात है कि यूजुअली व्हेन यू सी अदर देन कोविड, इफ यू सी अदर देन कोविड सिनेरियोज, जो हमारे इमरजेंसीज या कुछ डिजास्टर्स होते हैं और फॉर दैट मैटर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें ज्यादातर कम्युनिटीज जो देखा गया है, वो मेजर एस्पेक्ट ये होता है कि कम्युनिटी इज वर्किंग विद इन द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, whereas if you see this COVID scenario, here communities are working for general society. Communities have come together along with their resources, along with their skills to help the whole country. अब वो एक अलग चीज होती है कि कम्युनिटी की रीच कहाँ तक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उन ग्रुप ऑफ लोगों की रीच कहाँ तक है। हमने अगर आपने हम लोग अपनी कम्युनिटी से yes, लोगों ने काम किया, अपने रिलीजन, और ये चीज देखी गई है कि कोविड के टाइम में वो कोई भी कम्युनिटी थी, वो चाहे मेजोरिटीज थे, चाहे वो हिंदूज थे, चाहे वो माइनॉरिटी में जितने भी आते हैं, मुस्लिम, सिख, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन, सबने काम किया है, लेकिन कॉमन आदमी के लिए काम किया। हर कम्युनिटी अपने आसपास लोगों के लिए, पास जो लोग पास ऑन हो रहे थे उनके लिए, जो उनके रास्ते में जहां तक रीच थी उनकी। और उसी में ही अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो रोल रहा है वो यही रहा है। आप अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी इसी पीरियड में ईद गुजरी एंड अवेयरनेस इस लेवल पे आई कि जहां पर लोगों ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिटी लेवल पे, चाहे वो उस कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो एनजीओज थी, चाहे वो मतलब इंटेलेक्चुअल तबका था, उसने ये अवेयरनेस फैलाई कि इस वक्त मोर देन फॉलोइंग योर रिलीजियस ड्यूटीज, what is more important is to see the health of the country, see the health of yourself, and this pandemic should not become into a should not convert into a community spread. तो ये चीजें हुई बहुत सारे, जैसे कि सबने न्यूज में देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादातर जो थे वहाँ houses was converted into quarantine centers. What we saw about a month or 2 months back, it was different. This time when the Eid was there, it was entirely different. Lot of improvement was there. Yes, because 95% it was, I mean, people within community has spread this message to general Muslims that आप ईद का जो आपका फेस्टिवल है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, आप इंसान खुशियां मनाता है, तो उस पैसे को उन्होंने कहा कि आप इस्तेमाल कीजिए लोगों को हेल्प करने के लिए, स्पेंड दैट मनी ऑन टू प्रोवाइड फूड, टू प्रोवाइड support, medicines, whatever requirement of to the general public. और हमने देखा कि उस पीरियड में किस तरीके से लोगों ने खाना दिया है, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे थे उनके लिए हेल्प। मैं बड़ी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं अगर उस वक्त नाम लूं कि अजीम प्रेम जी का या किसी और ऐसे लोगों का जो बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का। ब्यूटी ये थी कि कॉमन आदमी जो कि एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता था, वो सामने आया है अपने जैसे सो एम्पैथी बहुत बढ़ी इस टाइम में। लोगों ने रियलाइज किया कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन, अबव ऑल ग्रुप्स, इट इज अबव कम्युनिटी ऑल्सो। सो वी हैव सीन पीपल दैट जहां पर के मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन वहां पर गुरुद्वारे थे, तो उनके लिए उन्होंने गुरुद्वारा खोल दिया। जहां पर मस्जिद थी, मदरसे थे, यही तो भाईचारा है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही बात इसमें आती है। एग्जैक्टली, सो ये एक इसके अंदर, और यही रोल होता है कम्युनिटी का, बिकॉज इस और ये दिस इट्स नॉट एंड, बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वायरस विल बी एक्टिव, और फॉर दैट मैटर इट विल रिमेन एक्टिव, हाउ मच इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। नाउ इट इज नॉट ओनली अफेक्टिंग अवर हेल्थ, सिर्फ हेल्थ ही नहीं है कि भाई हमें हो जा रही है ये बीमारी, और अनफॉर्चुनेटली सम पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, देयर फैमिली फ्रेंड्स, देयर फैमिली मेंबर्स। मोर देन दैट, फिजिकल हेल्थ तो आपकी इफेक्ट कर रही है, इट इज इफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। फ्रॉम मेंटल हेल्थ इट इज इफेक्टिंग योर सोशल गैदरिंग्स ऑल्सो। Yes, so social gatherings, social interactions also, and
definitely it has affected the economic conditions of the communities also. Yeah. Now We are here left comes the with role only of 10 community. minutes to go. I think I forgot other speakers to speak now. Can I request Dr. Nilofer Shroff from Parsi community, a trustee of the Delhi Parsi Association, to say a few words on the same topic? Actually, I was very happy to hear what Dr. Naz was saying. Yeah. I think all that she said is absolutely correct. Can you hear me? Yeah, properly. Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Yeah, we So, can hear you. I think I will not reiterate all this because, as you say, you're short of time. Yeah. The Parsis are a very small community. We really appreciate and think it's a great thing that the Sikh community is doing, and everyone is very appreciative of that. We don't have those numbers, we don't have those institutions, but we also have been brought up to think that charity is a very important part. And when I say charity, I include empathy, charity. So we have taken up, I also, besides being in the Delhi Parsi Anjuman, I'm also part of the Parzor Foundation, and we are running a thing called the Geo Parsi Project. The Geo Parsi Project is basically saying that Parsis don't finish off in India. I mean, it's a big problem that Parsi community is not going to be there for very long because we don't have enough children and we have many more deaths than births. However, this time in the Geo-Parsi project, what we have done, and as Dr. Naz said, mental health is a very important part. So our counselors who normally counsel the Parsis towards having more children, towards supporting their family, they have opened up their things. We've sent out links that anybody in any community who needs somebody to hear them, somebody to sympathize with them, somebody to tell them what to do, those numbers have been made available everywhere. So some of our trained counselors are available to help out. Besides that, of course, we've doing many other things, but I think maybe time is running off. Would you like I think we'll meet after again because the time for 40 minutes was there on the Zoom, and we may join with the new link again after a few minutes only. Meanwhile, I request Dr. Michael Williams to kindly let us know what the Christian community had been doing and what they would like to do further for this COVID period. Dr. Michael. Is Dr. Michael there? Michael is not there. Okay, can I request Mr. Virender Kumar Soni, would you please elaborate this point? Thank you, sir. Namaste सभी को. मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बुद्धिस्ट समाज को, लेकिन मैं पूरे समाज की भागीदारी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन वायलेंस फाउंडेशंस और भगवान बुद्ध के और महात्मा गांधी के विचारों पे आधारित है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. कोविड के दौरान जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने ज्यादा काम गवर्नमेंट को सहयोग करने में किया और इस्कॉन के साथ भी मिलकर काम किया है. सबसे ज्यादा जो काम हम लोगों ने किया, करीब 11,000 लोगों को राशन कूपन जो दिल्ली सरकार ने तैयार किया था, टेम्पररी कूपन दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को पता नहीं था कि उसको कैसे करना है, क्या करना है. तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिटी में अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचने की कोशिश किए और पूरे जब से खुला ये टेम्पररी राशन कूपन तब से लेके अब तक 11,000 लोगों तक हम लोग पहुंचे और उनका कूपन बनवा के दिया. इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से सबको एक जगह कलेक्टिव लाके और अलग अलग एरियाज में किए गए. लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज पूरे दिल्ली में कर सकता है, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने जहां भी हम सब मिलकर करना चाहते हैं. We want all the minority communities to unite together, work collectively. तो जी, डॉक्टर मिनास ने जो कहा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और अपनी समस्याओं को माइनॉरिटीज कमीशन तक, सरकार तक ले जाए, साथ में हम लोग एक ताकत भी बने गवर्नमेंट के लिए कि जहां गवर्नमेंट को जहां भी सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग करें.
और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जान भी जहान भी कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन। फिर पहले से कुछ स्कीम चल रही है जिसमें सीखो और कमाओ, कमाओ है, नई रोशनी स्कीम्स है फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन्स। तो इन सारे चीजों को कोलैबोरेटिव करके, जैसे अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें लग रहा है कि कोविड पेंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद अनलॉक जब होना शुरू हुआ तो काफी कम्युनिटीज में लोगों का लाइवलीहुड चला गया है, जॉब चला गया है, जिसके कारण से मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है। साथ में सही अवेयरनेस नहीं क्रिएट होने के कारण भी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशंस बन रहे हैं, जिसके कारण काफी लोगों को परेशानी हो रही है। तो जरूरत है हम सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हर तरीके से मॉनिटर कर सके चीजों को, अलग अलग स्किल, अलग अलग रिसोर्स के माध्यम से हम लोग हर एक पहलू पे ध्यान दे सके। कहीं इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की जरूरत है, कहीं हेल्थ की जरूरत है, कहीं मेंटल हेल्थ की जरूरत है। और मेंटल हेल्थ तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन स्पीकर नाउ सोनी साहब, मैं जी, ओके, बाय मिस्टर एसएल जैन, या President State Public Schools, Delhi. Mr. Jain, are you there? Mr. Jain, are you there? If not, then I'll pass on the mic, or my request to Mr. Ashwini Kumar to kindly say a few words. You've been a keen observer and watching what the speakers, the panelists have been saying. Could you elaborate, please? Connectivity over here is an issue. Yeah. So my apologies. First of all, I would like to congratulate Mr. Manhas for doing such a wonderful job, at least bringing the people together and making them to think in some rational direction. Because from here, as Dr. Naz was saying, that there are people who are affordable who are doing it. But the question is that with our feeling, how much we can do, and as a common man, what we can do. I know so many people who used to tell me in these days that earlier we used to know Sikhs. पहले असी सिखां नू जानदे सी भाई सिख कोई कौम है, लेकिन हुण असी उन्हां दी इज्जत करनी शुरू कर दित्ती, रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दित्ती. The reason is that they exhibited exemplary lifestyle where they contributed without any self involved. जिस टाइम आदमी दुख में होता है उसको जरूरी ये नहीं है कि उसको कोई क्वांटिटेटिवली मटेरियलिस्टिक चीजें मिले तो उसको सुख मिलता है. If the person finds a supporting hand, extended hand, even that is enough. That is emotional support. Thank you, Ashwini. So these now Mr. Jain is there. Mr. Jain, Guru de bandiya ne welcome to join this panel, and I would like to know your views on the topic given, sir. Mr. S.L. Jain. Hello, am I audible? Jain साहब, जैन साहब आवाज आ रही मेरी? उन्होंने को अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कीजिए उनको, अनम्यूट. जैन साहब, चलो meanwhile I go to सरदार भूपिंदर सिंह बाबा जी. बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. जैन साहब अनम्यूट, अनम्यूट. हाँ जी बाबा जी. बाबा जी आज आ रही है तो साड़ी. Connectivity is an issue and we are not able to reach to him. Hello. डॉक्टर मिनास, आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं वहां से सर को. हाँ जी. बाबा जी को आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं. बाबा जी को आप होस्ट हैं.
I'm from this side also. Jan Saab. Hello. 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 Yeah, okay. Can I go back to Babaji? Babaji, are you there? Okay. Mr. Jan, can you listen to me now? Jan साहब, बाबे आवाज आ रही है? Unmute हो गई. चलो, I go back to Mr. Ashwini. Mr. Ashwini. I am a We good can, stepney. I think we can conclude. I have Yeah. 5-7 minutes. I think there's some We problem can- with the connectivity there in their section, Yes. in their end only. I'll Hello. just say that the people who were doing their contribution with the feel that was shown, and we should. I agree with one gentleman who said that we should not depend on the government. If some service is to be done, we should do together. And I endorse Mr. Minhas completely that we should have a common platform where we should have a regular meeting to assess the situation, that which part of the society needs our help, and to extend our help irrespective of any other parameter or factor which could be seen. If time permits and you allow me to speak, I can continue. Yeah, Otherwise, please. Another minute, 1 minute thanks. more. 1 minute. Okay. Please. So I think here the question is, one issue was also raised that there are some people who were having not sufficient awareness or alertness about the gravity of the issues which are surrounding us during this pandemic. And there are some people who are insensitive towards the issues of others. You know what happens? At least the people who are associated with the field of education, or the people who have a sense of empathy in them, they should come forward, they should help out, they should take this assignment that it is in this time of difficult hours. It is not necessary that we are to work on financial aspects only or materialistic aspect only. Giving a right kind of guidance, suggestion, moral support, these are also the things which are equally appreciated, accepted, and demanded in the society. So, Okay, thank you, Ashwini ji. Thank you, very well said. And now, I think there were two speakers who said speakers are not working, maybe some connectivity problem over there. My apologies to those people. Maybe next time they join us again. Thank you very much to all the panelists for joining today. It was a thought-provoking view that we got from each other. And we hope that in the near future, we form one umbrella and show our strength to the government for our common causes. Thank you very much. Enjoyed to have you with me today. And Thank you very much for being Thank you so much. Thank you so much, initially Dr. taking Minhas. initiative. Thank you. Thank you very much for taking sir. initiative. Very nice. Thank you. Thank you so much, Dr. Minhas. So nice of you. And all the best to all of people who are doing good work. So nice. ਮਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ सर कि मिनॉरिटी वाले जितने भी हैं ना मिनॉरिटी वाले ये तो वो छाया का पेड़ है जमाने के काम आएंगे अगर सूख भी गए तो जलाने के बहुत अच्छा हम वो छाया का पेड़ हैं दोबारा सुन लीजिए हम वो छाया का पेड़ हैं जमाने के काम आएंगे अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे वाहिगुरु जी का खालसा thank you Mr. Nirlo next time again we'll meet Thank you sir God bless Thank you.